کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی ہر قیمتی چیز، چاہے وہ آپ کا اسمارٹ فون ہو یا کسی بڑی کمپنی کا سافٹ ویئر، وقت کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم اپ ڈیٹ مانگتی ہے؟ اگر اپ ڈیٹ نہ کیا جائے تو سسٹم ہینگ ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا یہ جسم اور آپ کی روح، جو اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور مہنگی مشین ہے، کیا اسے کسی اپ ڈیٹ کی ضرورت نہیں؟ ہم سال کے 11 مہینے اس مشین کو بغیر رکے چلاتے ہیں۔ بے تحاشا کھانا، ذہنی تناؤ، سٹریس اور دنیا کی بھاگ دوڑ ہمارے اندرونی سسٹم کو کچرے سے بھر دیتی ہے۔ پھر سال میں ایک مرتبہ کائنات کا مالک ہمارے لیے ایک سسٹم اپ ڈیٹ بھیجتا ہے جسے دنیا رمضان کے نام سے جانتی ہے۔ مگر دوستو، یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آج کی جدید سائنس اس مہینے کو بایولوجیکل ریزریکشن یعنی جسم کا دوبارہ زندہ ہونا کہہ رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا جسم اپنے پرانے اور بیمار حصوں کو ڈیلیٹ کر کے آپ کو اندر سے نیا بنانا شروع کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ سیکرٹ بتانے والا ہوں جو نہ کسی فٹنس کوچ نے آپ کو بتایا ہوگا اور نہ ہی شاید کسی سائنسدان نے اتنے آسان الفاظ میں ڈی کوڈ کیا ہوگا۔ ایک ایسا راز جو اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا تو دنیا کی کوئی گرمی یا کوئی مشکل آپ کو روزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکے گی، بلکہ آپ خود روزے کا انتظار کریں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ باہر سے خالی ہوتے ہیں تو آپ کا جسم اندر سے کیسے سیلف ہیل یعنی خود کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمیں کمزور کرتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ ویڈیو صرف ثواب کی بات نہیں کرے گی، بلکہ یہ آپ کو آپ کے اپنے جسم کی اس ہڈن لیب میں لے کر جائے گی جہاں ہر روزے کے ساتھ آپ کا ایک نیا جنم ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اس مالیکولر ریولوشن کو سمجھیں گے جو آپ کے ڈی این اے تک کو ریسیٹ کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مشین یعنی جسم کھانا پینا بند کرنے سے ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے پردہ اٹھاتے ہیں اس نوبل پرائز یافتہ راز سے جسے سائنس آٹوفیجی کہتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، مگر سائنس کو اسے ثابت کرنے میں صدیاں لگ گئیں۔ سال 2016 میں جاپان کے ایک سائنسدان یوشینوری اوسومی کو میڈیسن میں نوبل پرائز دیا گیا۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسے میکانزم کے بارے میں بتایا جسے کہتے ہیں آٹوفیجی۔ گریک زبان میں آٹو کا مطلب ہے سیلف یعنی خود، اور فیجی کا مطلب ہے ایٹنگ کھانا۔ سننے میں شاید یہ عجیب لگے کہ خود کو کھانا، مگر یہ دراصل جسم کا سب سے بڑا لائف سیونگ عمل ہے۔ جب ہمارے جسم کو باہر سے کھانا ملنا بند ہو جاتا ہے تو وہ بیکار نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں روز نیا سامان اور کھانا آتا ہے، مگر آپ کبھی کچرا باہر نہیں پھینکتے۔ آہستہ آہستہ وہ کچرا، جو کہ مردہ خلیے اور زہریلے مادے ہیں، سڑنے لگے گا اور بیماریاں پھیلائے گا۔ جب ہم 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتے، جو کہ ہمارے روزے کا عام دورانیہ ہے، تو ہمارا جسم ایک انٹرنل کلیننگ سروس آن کر دیتا ہے۔ جسم کا سسٹم پورے بدن کا چکر لگاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ پرانے بیمار اور ناکارہ خلیے اور سیلز کہاں ہیں۔ وہ ان ناکارہ خلیوں کو اور یہاں تک کہ کینسر پیدا کرنے والے خلیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر انہیں توانائی اور انرجی میں بدل دیتا ہے۔ پرانا کچرا صاف ہوتا ہے تو جسم نئے اور طاقتور خلیے بنانے کے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ راز جو کام دنیا کی مہنگی سے مہنگی ڈی ٹاکس میڈیسن، سپلیمنٹس یا سرجری نہیں کر سکتی۔ وہ رمضان کا ایک روزہ آٹو پائلٹ پر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہماری مشین کو اس ڈیوائن کلین اپ کی ضرورت تھی۔ روزہ دراصل آپ کے جسم سے وہ زہر اور ٹاکسنز نکال دیتا ہے جو شاید سالوں سے آپ کو اندر ہی اندر بیمار کر رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں فزیکل ریڈیمپشن، مگر یہ تو صرف جسم کی بات تھی۔ روزہ ہماری روح یعنی روح کی فریکوینسی کو کیسے بدلتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے کہنے کے پیچھے کیا گہرا راز چھپا ہے۔ دوستو، جسم کی صفائی تو سمجھ لی، مگر روزہ صرف ایک فزیکل ڈی ٹاکس نہیں ہے۔ یہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک سیکرٹ پیکٹ، خفیہ معاہدہ ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया? नमाज आप पढ़ते हैं, लोग देखते हैं। हज पर जाते हैं, लोग देखते हैं। ज़कात देते हैं, लोग देखते हैं। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान है। आप बंद कमरे में ठंडे पानी का गिलास पी सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं, मगर आप नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। यही वो इखलास है जिसकी वजह से अल्लाह ने रोज़े को मखसूस अपने लिए चुना है। यहाँ एक बहुत गहरी साइंस काम करती है। जब हमारा पेट भरा होता है, हमारी सारी एनर्जी डाइजेशन यानी खाना हजम करने पर लगी होती है। हम हैवी और लेजी महसूस करते हैं। जब हम हर वक्त खाते हैं, हमारा जिस्म सिर्फ बका यानी जिंदा रहने और हजम करने की फ्रीक्वेंसी पर होता है। जैसे ही हम रोज़ा रखते हैं और पेट खाली होता है, हमारी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी अचानक हाई हो जाती है। एनर्जी दिमाग और दिल की तरफ शिफ्ट होती है। आपने महसूस किया होगा कि रोज़े में आपका दिमाग ज़्यादा शार्प हो जाता है, आपका दिल नरम हो जाता है। इसे कहते हैं इंट्यूशन मोड, यानी वो हालत जहां इंसान कायनात के सिग्नल्स और अपने रब की आवाज़ बेहतर सुन सकता है। यही वजह है कि रमज़ान में दुआएं आग की तरह आसमान पर जाती हैं। जब आपका इंटरनल नॉइज़ जैसे भूख, प्यास और ख्वाहिशात का शोर खामोश होता है, तो आपकी प्रेयर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपका रब से कनेक्शन डायरेक्ट डायल हो जाता है। नाजरीन, क्या आपने कभी रोज़े की हालत में वो अजीब सा सुकून महसूस किया है जहां लगता है कि अल्लाह बिल्कुल करीब है? कमेंट में माशा अल्लाह लिखें अगर आपने ये हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्शन महसूस किया है। लेकिन रोज़ा सिर्फ रूह को नहीं, बल्कि आपके दिमाग के सर्किट्स को भी दोबारा जोड़ता है। चलिए देखते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए रमज़ान आपको एक नया माइंडसेट कैसे देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि रमज़ान 30 दिन का ही क्यों होता है, 10 या 15 दिन का क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के इन सर्किट्स में, जिन्हें बदलना आम हालात में नामुमकिन लगता है। रोज़ा सिर्फ पेट की भूख का नाम नहीं है। असली रोज़ा तो आपकी ज़बान, आपकी आँख और आपके कान का होता है। जब आप भूखे होते हैं और कोई आपको गुस्सा दिलाता है, मगर आप कहते हैं मैं रोज़े से हूँ। जब आपका दिल झूठ बोलने या किसी की बुराई करने को करता है, मगर आप रुक जाते हैं। दरअसल आप अपने दिमाग को एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप अपने नफ्स और इम्पल्सेस को ना कहना सीख रहे होते हैं। जदीद साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह होता है जिसे ढाला जा सकता है। हमारी हर आदत दिमाग में एक रास्ता और पाथवे बनाती है। साइंस कहती है कि किसी भी पुरानी ज़िद्दी आदत को ख़त्म करने और नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए 21 से 30 दिन का मुसलसल वक्त चाहिए होता है। जब आप 30 दिन तक मुसलसल गुस्से को पी जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात पर ब्रेक लगाते हैं, तो आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो हिस्सा है जो फैसले करता है और जज्बात को कंट्रोल करता है, जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाता है। रमज़ान दरअसल एक वॉल पावर बोट कैंप है। ईद के दिन जब आप निकलते हैं तो आप सिर्फ एक रोज़ादार नहीं होते, बल्कि आप एक अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, आपकी फोकस करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। आप दुनिया की मुश्किलात को सब्र से देखने के आदी हो चुके होते हैं। यहाँ एक काबिल गौर नुक्ता है। अगर आप 30 दिन तक पानी के ग्लास को देखकर नहीं कह सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में किसी भी गुनाह या बुरी आदत को नहीं कहने की ताकत रखते हैं। यह है वो असली नफ्सियाती आज़ादी और साइकोलॉजिकल फ्रीडम जो रमज़ान हमें तोहफे में देता है। लेकिन लोग अक्सर डरते हैं कि रोज़े से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो काम नहीं कर सकेंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक ज़हनी धोखा है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और साइंस इसे द एनर्जी पैराडॉक्स कहती है। हमारा जिस्म एक मशीन है और डाइजेशन यानी खाना हजम करना इस मशीन का सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करने वाला अमल है। जब आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, तो आपके जिस्म की तकरीबन 15% से 20% एनर्जी सिर्फ खाना हजम करने में लग जाती है। जब आप रोज़ा रखते हैं, तो वो सारी एनर्जी जो खाना हजम करने में ज़ाया हो रही थी, वो अचानक फ्री हो जाती है। अब आपका जिस्म इस इजाफी एनर्जी को 2 जगह भेजता है। पहला, दिमाग में। इससे आपका फोकस और ज़हनी क्लैरिटी बढ़ जाती है। साइंस इसे BDNF लेवल्स का बढ़ना कहती है। और दूसरा, इससे अंदर की मुरम्मत होती है। आपके पुराने ज़ख्मों, खुलियों यानी सेल्स और आज़ा की गहरी सफाई,
यानी डीप क्लीनिंग शुरू हो जाती है। अगर रोज़ा इंसान को कमज़ोर करता तो दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। मगर सच्चाई तो ये है कि इस्लाम की सबसे बड़ी फतह जंग बदर 17 रमज़ान को हुई थी। ज़रा सोचिए, सिर्फ 313 लोग जो भूखे और प्यासे थे, उन्होंने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। उनके पास सिर्फ तलवार की ताकत नहीं थी, बल्कि रोज़े की वजह से वो सुपर ह्यूमन स्टेट में थे, जहां दिमाग डर से आज़ाद और रूह अल्लाह की फ्रीक्वेंसी पर सेट थी। फतह मक्का हो या स्पेन की फतह जो कि तारिक बिन ज़ियाद ने की, ये बड़े बड़े फैसले और जीत रमज़ान में ही क्यों हुई? क्योंकि रोज़ा आपको सुस्त नहीं बनाता, ये आपकी लेटेंट एनर्जी यानी छुपी हुई ताकत को जगा देता है। रोज़ा आपकी जिस्मानी बैटरी को लो नहीं करता, बल्कि आपकी रूहानी बैटरी को ओवरचार्ज कर देता है। जो काम आप आम दिनों में थक कर छोड़ देते हैं, रोज़े की हालत में वही काम अल्लाह की गैबी मदद से मक्खन की तरह होने लगता है। तो दोस्तों, जब इतना कुछ मिल रहा हो, जिस्म की सफाई, दिमाग की रीवायरिंग और सुपर ह्यूमन एनर्जी, तो क्या कोई होशमंद इंसान इस मौके को जाने देगा? आज की इस पूरी गुफ्तगू के बाद क्या आप अब भी ये सोचते हैं कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम है? हरगिज़ नहीं। रमज़ान आपको भूखा रखने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको आपकी ओरिजिनल स्टेट और असल हालत पर वापस लाने के लिए आता है। हम साल भर दुनिया की मिलावट, ज़हनी दबाव और गैर सेहतमंद आदतों में खो जाते हैं। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना दरअसल आपके जिस्म की क्लीनिंग सर्विस, आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट और आपकी रूह का रिकनेक्शन है। याद रखें, ये 30 दिन की जिस्मानी और रूहानी कुर्बानी दरअसल आपके अगले 11 महीनों की गारंटी है। अगर आपने इन 30 दिनों में अपने सिस्टम को रीसेट कर लिया, तो बाकी का साल आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेहत और आपका नसीब बुलंदियों को छुएगा। आप एक नए इंसान बनकर उभरेंगे, एक ऐसा इंसान जो अपने जज्बात का मालिक है, गुलाम नहीं। मुबारक हो उनको जो इस महीने की कदर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रोज़ा नहीं रख रहे, वो अपनी तकदीर को रिकैलिब्रेट और नए सिरे से दुरुस्त कर रहे हैं। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मदद। अगर आप इस बार रमज़ान को इसके सही रूहानी और साइंसी मकसद के साथ गुजारना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपका नज़रिया बदला है तो इसे लाइक करें। इस रमज़ान सीक्रेट को अपने घरवालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस्लामिक नरेटर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम मिलकर दीन और साइंस के इन छुपे हुए राजों को डीकोड करते रहें। अगली वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे एक और अजीम राज से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रमज़ान मुबारक और अल्लाह हाफिज़।